اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہدایت کا سرچشمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میری ایسی حالت ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقرب فرشتے کے لیے بھی گنجائش نہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ اس عجیب آدمی کی حالت یہ ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سماتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حالت نہیں ہے کہ تیرے جیسا ناپاک خچر اس میں سما جاتا ہے۔ ایک مسخرے نے چاہا کہ بادشاہ کی طبیعت خوش کرے۔ ہر کسی نے اسے کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا کیونکہ بادشاہ بہت ہی برا فوختہ تھا۔ بادشاہ غصے کی حالت میں ندی کے کنارے سیر کر رہا تھا۔ مسخرہ دوسری طرف سے بادشاہ کے پہلو میں ہو کر سیر کرنے لگا۔ مسخرہ نے بادشاہ کی توجہ اپنی طرف منعطف کرنے کی بہت کوشش کی۔ بادشاہ نے کسی طرح بھی مسخرہ کی طرف نہ دیکھا۔ مسخرہ عاجز آ گیا، بولا، اے بادشاہ، اس پانی میں تجھے کیا نظر آتا ہے جو تو بار بار ادھر دیکھتا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، مجھے تو ایک دیوس نظر آ رہا ہے۔ بولا، غلام بھی اندھا نہیں ہے، غلام کو بھی ایک دیوس نظر آ رہا ہے۔ اب جب تجھ پر ایسا وقت آتا ہے کہ تجھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سماتا تو یہ عجیب بات ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت نہیں کہ اس میں ایک خچر نہ سما جائے۔ آخر تو نے جو یہ حالت پائی ہے یہ اسی کی برکت اور تاثیر سے ہے، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ عطا پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر کرتا ہے، پھر اس سے اوروں کو بخشش ہوتی ہے۔ جب یہی سنت ہے تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، تجھ پر خدا کی سلامتی اور رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ ہر وہ چیز جو نثار ہونے کے قابل ہے میں نے تجھ پر نچھاور کر دی۔ اس نے کہا، اور خدا کے نیک بندوں پر خدا کا راستہ ڈرانے والا اور بند تھا اور یخ بستہ تھا۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان پر کھیلے، انہوں نے گھوڑا اس راہ پر ڈالا، اس میں در آئے اور راستہ کے بند میں شگاف ڈالا۔ اب جو کوئی اس راستہ پر چلتا ہے انہی کی ہدایت اور مہربانی سے گامزن ہوتا ہے۔ یہ راستہ پہلے انہوں نے ظاہر کیا اور اس میں جگہ جگہ نشان لگائے اور لکڑیاں گاڑی کہ تم ادھر نہ جاؤ اور ادھر نہ جاؤ، اور اگر اس طرف جاؤ تو سمود اور عاد قوم کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر اس طرف چلو گے تو مومنوں کی طرح مخلصی پاؤ گے۔ تمام قرآن میں یہی بیان ہے کہ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران، یعنی ان راستوں پر ہم نے نشان لگا دیے ہیں، اور اگر کوئی یہ ارادہ کرے کہ ان لکڑیوں میں سے کسی ایک لکڑی کو توڑ ڈالے تو سب اس کی مخالفت کریں کہ تو ہمارا راستہ کیوں ویران کرتا ہے اور ہماری ہلاکت کے لیے کیوں کوشاں ہے؟ شاید تو کوئی ڈاکو ہے۔ اب سمجھ لے کہ پیش رو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب تک کوئی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچے ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ تو کسی جگہ جانا چاہے تو پہلے عقل رہنمائی کرتی ہے، اس کے بعد اپنے مراتب سے اعضاء حرکت میں آتے ہیں۔ اگرچہ اعضاء کو آنکھ کی خبر نہیں اور آنکھ کو عقل کا پتہ نہیں۔ اسباب کی حقیقت مستعار ہے۔ آدمی اگرچہ غافل ہے، دوسرے اس سے غافل نہیں ہیں۔ جتنا تو دنیا کے کام میں زیادہ جدوجہد کرتا ہے اتنا ہی حقیقت کار سے غافل ہو جاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی رضا طلب کرنی چاہیے، نہ کہ خلق کی رضا، کیونکہ دنیا کی رضا محبت اور شفقت مستعار ہے اور خدا نے آرائتن دے رکھی ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو جمعیت اور ذوق نہیں دیتا۔ نعمت، نان اور تنمات کے اسباب تکلیف اور مشقت بن کر رہ جاتے ہیں، پس تمام اسباب قلم کی طرح قدرت حق کے ہاتھ میں ہیں۔ حرکت دینے والا اور لکھنے والا دراصل خداوند تعالیٰ ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے قلم کو جنبش نہیں ہوتی۔ اب تو قلم پر نظر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس قلم کے لیے
एक हाथ चाहिए। तू कलम को देखता है, हाथ तुझे नजर नहीं आता। कलम को देखता है तो हाथ याद आ जाता है। वो क्या है जिसे तू देखता और जो कुछ तू कहता है। लेकिन ये हमेशा हाथ को देखते हैं। ये कहते हैं कि जब तू हाथ है तो कलम भी चाहिए, बल्कि हुई दस्त के मुतालिया की वजह से उन्हें मुतालिया कलम की परवाह नहीं होती और कहते हैं कि ऐसा हाथ बगैर कलम के नहीं होता। जब तुझे मुतालिया कलम में ऐसी हलावत मिलती है कि तुझे हाथ की परवाह नहीं रहती, तो उन्हें उस हाथ के मुतालिया में जो हलावत मिलती है उसके होते हुए उन्हें कलम की हाजत कैसे हो। जब तुझे जौ की रोटी में हलावत मिलती है तो गंदम की रोटी कैसे याद आए, तो उन्हें गंदम की रोटी होते हुए जौ की रोटी कैसे याद आए। जब उसने तुझे जमीन पर एक ज़ौक बख्श दिया तो तू आसमान की ख्वाहिश नहीं रखता, हालांकि असल महल ज़ौक़े आसमान ही है और जमीन खुद आसमान से जिंदगी पाती है। भला अहले आसमान जमीन को क्या याद करें। अब खुशियों और लज्जतों को उनके असबाब से न देख, क्योंकि असबाब को वो हकीकत मुस्तार मिली है, क्योंकि वही ज़रर पहुंचाने वाला है और वही नफा देने वाला है। जब ज़रर और नफा उसी की तरफ से है तो असबाब पर क्यों चिपकता है। बेहतरीन कलाम वो है जो कलील हो और मुदल्लल हो। बेहतरीन बात वो है जो मुफीद हो, ना कि जो ज्यादा हो। कुल हुवल्लाहु अहद, कह अल्लाह एक है। बज़ाहिर एक छोटी सूरत है, लेकिन अफादियत के एतबार से सूरह बकर पर फौकियत रखती है। अगरचे सूरह बकरा तवील है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1000 बरस दावत हक दी, इस पर 40 अफराद ने उसकी पैरवी की। जाहिर है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना अरसा दावत हक के लिए मिला, इसमें कितने ममालिक उन पर ईमान ले आए, उनमें से कितने औलिया व औताद जाहिर हुए। बस मोतबर ना ज्यादती है ना कमी। असल मतलब अफादियत से है। हो सकता है कि बाज लोगों की मुख्तसर सी बात लंबी बात से ज्यादा मुफीद हो। ये ऐसा ही है कि तनूर की आग जब इंतहाई तौर पर ज्यादा तेज हो तो उससे फायदा नहीं उठाया जा सकता और उसके नजदीक नहीं जा सकते, लेकिन कमजोर चिराग से तू हजारों फायदे उठाता है। बस मालूम हुआ कि मकसूद फायदा है। बाज के लिए यही मुफीद है कि वो बात सुने, वो सिर्फ देखें। उनका देखना ही बहुत है और उनके लिए नफामंद है। अगर वो बात सुन लें तो उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है। हिंदुस्तान से एक बुजुर्ग ने बहुत लंबे सफर पर कमर बांधी। जब वो तबरेज में दाखिल हुआ तो शहर के कंज मकान तक जा पहुंचा। कंजे मकान के अंदर से आवाज आई कि वापस लौट जा, तेरे हक में इतना ही नफा है कि तू इस दरवाजे तक पहुंच गया। अगर तू शहर को देख ले तो तुझे नुकसान होगा। थोड़ी मगर मुफीद बात ऐसी ही है जैसे एक चिराग रोशन ने एक नारोशन चिराग को बोसा दिया और आगे बढ़ गया और उसके हक में इतना ही बहुत है और वो मकसूद को पहुंच गया। नबी आखिर वो शक्ल नहीं है, शक्ल नबी का घोड़ा है। नबी दरअसल वो इश्क और मोहब्बत है और वो हमेशा बाकी रहती है। जिस तरह हजरत सालेह का नाका उसकी शक्ल नाका है, नबी वो इश्क और मोहब्बत है और वो जावदानी है। एक शख्स ने कहा, मीनारा पर सिर्फ खुदा ही की सना क्यों नहीं की जाती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी याद करते हैं। उससे कहने लगे कि आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खुदा की तारीफ है। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स कहता है खुदा बादशाह को लंबी उम्र दे, और उस शख्स को कि जिसने मुझे बादशाह तक पहुंचने का रास्ता बताया या जिसने मुझे बादशाह का नाम और उसके औसाफ बताए। अब उसकी तारीफ दर हकीकत बादशाह की तारीफ हुई। नबी ये कहता है कि मुझे कोई चीज दो, मैं मोहताज हूं, अपना जुब्बा मुझे दे या माल या अपना कपड़ा मुझे दे। भला वो जुब्बा और माल को क्या करेगा। वो सिर्फ ये चाहता है कि तेरा लिबास हल्का कर दे ताकि आफताब की गर्मी तुझ तक पहुंचे, क्योंकि खुदा को कर्जे हंसना दो। सूरह हदीद। वो सिर्फ माल और जुब्बा ही नहीं चाहता, माल के अलावा भी उसने तुझे बहुत चीजें दे रखी हैं, इल्म और फिक्र और अक्ल और नजर। मतलब यह है कि घड़ी भर नजर, फिक्र, सोच और अक्ल को मेरे लिए सरफ कर
आखिर तूने माल इन्हीं आलात से हासिल किया है जो मैंने तुझे दिए हैं। वो परिंदों से भी और जाल से भी सदका जाता है। अगर तू आफताब के सामने बरहा ना हो सके तो बेहतर है, क्योंकि वो आफताब तुझे स्याह नहीं करता बल्कि सफेद करता है। कपड़ों को तू एक बार हल्का कर दे ताकि तू आफताब का ज़ौक देखे। एक मुद्दत तक तो तुर्शी का आदी रहा, अब एक मर्तबा शरीनी को आसमां देख। ख्याल ख्याल में फर्क। हर वो इल्म जो दुनिया में इक्तिसाब से हासिल होता है इल्म अबदान है, और वो इल्म जो मरने के बाद हासिल होता है इल्म अदियान है। अनल हक के इल्म का जानना इल्म अबदान है और अनल हक हो जाना इल्म अदियान है। चराग के नूर और आग को देखना इल्म अबदान है। आग में जलना या चराग के नूर में इल्म अदियान है। जो कुछ भी इस दीद से है इल्म अदियान है। जो कुछ अकल है वो इल्म अबदान है। दीद और दीदन हकीकत है, बाकी तमाम उलूम ख्याल है। मसलन इंजीनियर ने गौर व फिक्र किया और मदरसा की इमारत ख्याल में लाया। हर चंद के वो गौर व फिक्र दुरुस्त और ठीक है, लेकिन ख्याल है। एक वक्त आता है कि ये ख्याल हकीकत बन जाता है और मदरसे को तामीर करा देता है। फिर ख्याल ख्याल में भी फर्क है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ख्याल सहाबा के ख्याल से बुलंद है, और ख्याल ख्याल में बहुत फर्क है। एक माहिर इंजीनियर मकान की बुनियाद रखने का ख्याल करता है, एक ऐसा शख्स भी मकान की बुनियाद रखने का ख्याल करता है जो इंजीनियर नहीं। इन दो ख्यालों में बड़ा फर्क है, इसलिए कि इंजीनियर का ख्याल हकीकत से नजदीक तर है। इसी तरह आलम हकायक और दीद की जिहत में फर्क है। दीद दीद में फर्क है। बस जो कुछ वो कहते हैं 700 पर्दे हैं जुल्मत के और 700 पर्दे हैं नूर के। जो कुछ आलम ख्याल है वो जुल्मत का पर्दा है, और जो कुछ आलम हकायक है वो नूर के पर्दे हैं। लेकिन जुल्मत के पर्दों में जो ख्याल है फर्क नहीं किया जा सकता, और उनकी इंतहाई लताफत की वजह से उन्हें देखा नहीं जा सकता। हकायक में इतना अजीब और गहरा फर्क है, फिर भी ये फर्क समझ में नहीं आ सकता। अजाब ईमान पैदा करता है। अहले दोज़ख दुनिया की निस्बत दोज़ख में ज्यादा अच्छे रहते हैं, इसलिए कि दोज़ख में वो खुदावंद ताला से बाखबर रहते हैं और दुनिया में इससे बेखबर, और खुदावंद ताला के मुताल्लिक बाखबर होने से शीरीं तर कोई बात नहीं। बस वो जो दुनिया की आरज़ू करते हैं तो इसलिए कि कोई अमल करे ताकि मज़हर लुत्फ़ खुदावंदी से बाखबर हो, इसलिए नहीं कि दुनिया दोज़ख से ज्यादा अच्छी है। इन मुनाफिकों को दोज़ख के असफल तरीन हिस्सा में इसलिए डालते हैं कि इनमें ईमान आए। इनका कुफ्र मजबूत था, उन्होंने अमल ना किया, उन्हें ज्यादा सख्त अजाब दिया जाता है ताकि उन्हें खुदा की खबर मिले। काफिर में ईमान नहीं होता, इसका कुफ्र कमजोर होता है, इसलिए वो थोड़े अजाब से ही खुदा के मुतालिक बाखबर हो जाता है। ये ऐसा ही है कि एक चादर पर गर्द पड़ी हो और एक कालीन पर गर्द पड़ी हो। चादर को एक ही आदमी झाड़ दे तो गर्द उतर जाती है, लेकिन कालीन के लिए 4 आदमी चाहिए जो उसे जोर से झटके, जब जाकर उसकी गर्द दूर होती है। और वो जो दोस्त की लोग कहते हैं अल्लाह ने तुम्हें जो रिज़्क या पानी दिया है उसका कुछ हिस्सा हमें भी दो। खुदा ना करे कि वो खाने और मशरूबात चाहें, यानी कि जो चीज नहीं मिली है और जिससे तुम हमेशा मुतमत्ते होते हो वो हमें भी तफवीज कीजिए। रजा का शफे इसरार है। कुरान एक दुल्हन की तरह है, जब तू उसकी चादर का गोशा सिरका दे तो वो अपना चेहरा तुझे दिखा देता है। जब तू उससे तकरार करता है और तुझे खुशी और शरह सदर नहीं होती तो ये ऐसा है कि उसने तेरे चादर का गोशा सिरकाने को रद्द कर दिया और तुझसे बहाना किया, और उसने तेरे सामने अपने आप को जश्तरू जाहिर किया, यानी कि मैं वो माशूक नहीं हूं। वो कादिर है
जिस शक्ल में चाहता है अपने आप को दिखाता है, लेकिन अगर तू उसकी चादर का गोशा ना सिरकाए, उसकी रजा तलब करे, उसकी खेती को पानी दे, दूर रहकर उसकी खिदमतें करे, जिसमें उसकी रजा हो, उसके लिए गोशा रहे, तो बावजूद इसके कि तूने उसकी चादर का गोशा नहीं सिरकाया, वो तुझे अपना चेहरा दिखा देता है। अहले हक की तलब के मेरे बंदों में दाखिल हो, फिर मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सूरह फज्र। अल्लाह ताला हर किसी से बात नहीं करता। ये ऐसे ही है कि दुनिया के बादशाह हर चुलाहे मोची से बात नहीं करते। उन्होंने वजीर और नायब मुकर्रर कर रखे हैं, उनके तवस्सुत से बादशाह तक रास्ता मिलता है। खुदावन ताला भी एक बंदे को चुन लेता है ताकि जिस किसी को खुदा की तलब हो वो उसके पास आए, और तमाम अंबिया इसीलिए आए हैं क्योंकि उनके अलावा कोई रास्ता नहीं। वजदान। सिराजुद्दीन ने कहा कि मैंने एक मसला बयान किया तो मेरे अंदर दर्द हुआ। फरमाया, वो एक मुअक्कल है जो नहीं छोड़ता कि तू वो मसला बयान करे, अगरचे तू उस मुअक्कल को महसूस नहीं करता और देखता नहीं, लेकिन जब तू शौक, हरकत और रंज को देखता है तो समझता है कि कोई मुअक्कल है। मसलन तू पानी में चलता है, नरमो नाजुक फूल और रेहान तेरे रास्ता में आते हैं, जब तू दूसरी तरफ जाता है तो तुझे कांटे चुभते हैं। मालूम हो गया कि उस तरफ खारिस्तान है और रंज और तकलीफ है, और इस तरफ गुलिस्तान और राहत है, अगरचे इन दो में से तू देखता किसी को भी नहीं। इसे वजदान कहते हैं। ये एहसास की निस्बत ज्यादा नुमाया है। भूख, प्यास, गुस्सा, खुशी सब एहसासात नहीं है, लेकिन एहसासात से ज्यादा नुमाया है, इसलिए कि अगर तू आंखें बंद कर ले तो महसूस होने वाली चीजों को नहीं देखता, लेकिन भूख खुद ब खुद किसी हीले से दूर नहीं हो सकती। इसी तरह गर्म ग़िज़ाओं में गर्मी और महसूस ना होने वाले खानों में सर्दी, शरीनी और तलखी वगैरह हैं, लेकिन एहसास से ज्यादा नुमाया है। आखिर तू इस जिस्म पर क्या नजर करता है? इस जिस्म से तेरा क्या ताल्लुक है? तू उसके बगैर कायम है और हमेशा इसके बगैर है। अगर रात है तो जिस्म की तू परवाह नहीं रखता, और अगर दिन है तो कामों में मसरूफ है, और ये मसरूफियत जिस्म से हरगिज़ नहीं। अब अगर तू एक घड़ी के लिए भी इस जिस्म के साथ नहीं है तो इसके लिए लरजता क्यों है? दूसरी जगहों पर तू कहां और जिस्म कहां? तू एक वादी में है और मैं दूसरी वादी में हूं। ये जिस्म एक बहुत बड़ा मुगालता है, गुमान करता है कि जिस्म मरा तो इंसान भी मर गया। खबरदार, जिस्म से तेरा क्या ताल्लुक? ये एक बहुत बड़ी चश्मा बंदी है। फिरौन के जादूगर जब थोड़े से वाकिफ हुए तो जिस्म को फिदा कर दिया, और उन्होंने देखा कि वो जिस्म के बगैर भी बदस्तूर कायम है, और ये कि जिस्म उनसे कुछ ताल्लुक नहीं रखता। इसी तरह जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और अंबिया और औलिया इस हकीकत से वाकिफ हुए तो जिस्म और उसकी हस्तबूद से फारिग हो गए। हुज्जाज ने एक मर्तबा भंग पी हुई थी और दरवाजे पर सर धरे चिल्ला रहा था कि दरवाजा को ना हिलाना, कहीं मेरा सर न गिर पड़े। उसे गुमान था कि उसका सर जिस्म से जुदा है और ये कि वो दरवाजा की वजह से कायम है। हमारा और खालिक का ये हाल है कि समझते हैं बदन से ताल्लुक रखते हैं और बदन की वजह से कायम है। जिस्म से साया की निस्बत। आदम को खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया है। बहुत औरतें होती हैं जो पर्दा में रहती हैं, लेकिन वो अपना चेहरा खोल देती हैं ताकि कोई मतलूब अपने आप को आजमाए। जिस तरह तू उस तरह को आजमाता है और आशिक माशूक से कहता है, मैं ना सोया हूं ना मैंने कुछ खाया है और मैं तेरे बगैर ऐसे हो गया और वैसे हो गया। इसके मानी ये हुए कि तुझे जाहिर करने वाले की तलब है, तुझे जाहिर करने वाला मैं हूं, ताकि तू दो माशूकों के पास अपने आप को फरोख्त करे। और इसी तरह सब उलमा और हुनरमंद जाहिर करने वाले को तलब करते हैं। मैं छुपा हुआ खजाना था, बस मैंने पसंद किया कि पहचाना जाऊं। उसने खल्क को अपनी सूरत पर पैदा किया, यानी अपने आकाम की सूरत पर। उसके आकाम सब खल्क में जाहिर हुए, इसलिए कि सब ही खुदा का साया है।
और साया जिस्म के साथ कायम रहता है। अगर 5 उंगलियां खोल दी जाएं तो उनका साया भी खुल जाता है। अगर कोई रुकू में जाए तो साया भी रुकू में जाता है, और अगर वो दराज हो तो साया भी दराज होता है। बस खल्क एक मतलूब है और महबूब की तालिब है, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि उसके मुहिब बने और उसके सामने आजिज़ी करने वाले बने और उसके दुश्मनों के दुश्मन और दोस्तों के दोस्त बने। ये सब खुदा के अहकाम और सिफात हैं जो वो साया में जाहिर करता है। ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा साया हमसे बेखबर है, लेकिन हम बाखबर हैं। ताहम हमारी ये बेखबरी खुदा के इल्म की निस्बत से बेखबरी का हुक्म रखती है। जो कुछ जिस्म में होता है वो सब का सब साया में जाहिर नहीं होता, सिर्फ बात चीजें जाहिर होती हैं। खुदा की सारी सिफात हमारे इस साया में जाहिर नहीं, सिर्फ बात सिफात जाहिर है, क्योंकि हमने तुमको बहुत ही थोड़ा इल्म दिया है। सूरह बनी इसराइल। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी, और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।